Now, as per section 7(1)(b), it specifically talks about the importation of services. It very clearly says importation of services for consideration whether or not in course or furtherance of business. So let us try and understand different aspects of this terminology, and then we will talk about certain examples. The first point is importation of service. Now, why importation of service is liable for GST? I think we have already discussed that at the time of discussing structure. I said very clearly that importation of service was actually liable for service tax. And since entire service tax has been subsumed under the GST, so it has been actually covered under the GST. So importation and exportation of service both will be considered under GST. Here they have talked about a specific point which is with regard to importation of services. Now, when I say importation of services, that means it requires certain conditions. Number one, the supplier has to be outside India. Number two, the recipient has to be in India. The supplier has to be outside India. The recipient has to be in India. And the place of supply is also supposed to be India. When I say supplier is outside India, so जो बंदा सर्विस दे रहा है वो outside India से दे रहा है. जो बंदा सर्विस रिसीव कर रहा है वो somewhere in India है. So supplier is outside India, the recipient is in India. And the place of supply, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, वो भी इंडिया है. So in that case, it is always liable for GST under importation of service category. But the point is, importation of service has to match all the three aspects. Let us say there is some foreigner who is on outside India, Mr. X, is providing to a service to Mr. Y who is in India. However, जो service है, वो है with regard to a foreign trip. So in that case, जो foreign trip है वो outside India हो रहा है. So the place of supply is outside India. If that happens, then I'm sorry, that is not liable for GST. So the point is, GST will be charged only when it falls under importation of services. मान लो कि कोई foreign की होटल है, वो इंडिया में किसी कस्टमर को रहने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट द कस्टमर इंडियन है. द सर्विस इज विद रिगार्ड टू स्टेइंग इन अ होटल विच इज आउटसाइड इंडिया. सो सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, द रेसिपिएंट इज इन इंडिया, बट जो रहने के लिए है वो लोकेशन आउटसाइड इंडिया है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया. सो दिस वुड नॉट क्वालिफाई एज एन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज. बट मान लो कि कोई सप्लायर है जो किसी इंडियन को सर्विस दे रहा है, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इंडिया, then in that case it is liable for GST. Now the important point is that importation of service should always be for consideration. Without consideration तो GST लग ही नहीं सकता. So importation of service should be there for consideration. But the important part is it says whether or not in course or furtherance of business. अभी आप देखो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन है ना, उधर बहुत क्लियर है कि इट शुड बी ऑलवेज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, व्हाइल दिस डेफिनेशन वेरी क्लियरली सेज वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. Now, the important aspect over here is when you say in course or furtherance of business, so whose course or furtherance of business? Whether the supplier's course or furtherance of business or recipient's course or furtherance of business. Let us try and understand that particular example. Let us say Navkar is providing services to students. Navkar, foreign की नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल पॉइंट की. Navkar is providing services to a student, and against that the student is giving consideration. So when Navkar is providing services to students and against that the students are giving consideration, so we say that there should be a supply and there should be a consideration and it should be in course or furtherance of business. माना whose course or furtherance of business, supplier or recipient? Okay, it should be from the supplier's course or furtherance of business. It should not be from the recipient's course or furtherance of business. This is where I'm talking about point number one. But when I talk about point number two, my answer will change a bit. Let us say, कोई foreign educational institute है जो किसी इंडियन को सर्विस दे रहा है. Now the point is, when I say जो foreign educational institute है जो किसी इंडियन को सर्विस दे रहे हैं, वो दो पॉसिबिलिटी है. एक जो इंडियन सर्विस ले रहा है वो उसके बिजनेस के रिगार्डिंग है. लेट अस से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम डूइंग अ कोर्स ऑफ IFRS फ्रॉम सम फॉरेन बॉडी. सो दैट IFRS इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू माय बिजनेस एक्टिविटी. सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई जो बॉडी है वो बॉडी मुझे सर्विस दे रहा है एंड इट इज इन रिलेशन टू माय बिजनेस एक्टिविटी. सो मैं बोल सकता हूं कि इट इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस.
नाउ लेट अस से कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट जाता है उस बॉडी के पास पढ़ने के लिए एज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट एज येट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इज नॉट गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस IFRS सर्विसेज इन बिजनेस टुडे. He may do that in future. That's a separate aspect. He is not doing it today. Now the point is the importation of services received by that person. So in that case also he will give the consideration. Now in both the aspect that in educational body is always doing the business. The point is the recipient, in my case I was doing the business, in that student's case he was not doing the business, so he's not going to use that in course or furtherance of business. So the point is when you talk of importation of services and when you talk of the course or furtherance of business, it should not be from the supplier's perspective, rather it should be from the recipient's perspective. It should be an importation of services, it should be for a consideration, but it should be in course or furtherance of business. And when I say in course or furtherance of business, it should not be from the supplier's perspective, rather it should be from the recipient's perspective. I'll tell you a logic of that also, friends. What is the logic? Simple point मैं बताऊं. जिसको GST भरना है ना, it should be in that person's course or furtherance of business. मान लो कि मैं नवकार आपको सर्विस देता है, so who is liable to pay GST? तो क्या सप्लायर. तो क्या सप्लायर का बिजनेस ही देखने का होता है. Why you should look at from the recipient's business perspective? वो उसके बिजनेस के रिलेटेड हो के ना हो, आपको क्या फर्क पड़ता है. The point is a supplier is liable for GST, so it should be in course or furtherance of supplier's business. Now let us say when I talk of importation of service, so someone is providing services from outside India to me in India. Now that's where if you remember charging section अगर आपका पूरा हो गया है तो उसमें RCM है, और RCM में importation of services is one of the first service. कि भाई अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो और रिसिपिएंट इन इंडिया हो तो सप्लायर से तो क्या टैक्स कलेक्ट करोगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपए का सर्विस है जो आउटसाइड इंडिया से कोई हमें दे रहा है इंडिया में, और जिसके ऊपर 18 रुपए का टैक्स है. तो किनाई से वो 100 + 18 का बिल बनाएगा 118. मान लो हमने उसको 118 दे दिए, तो ये फॉरेन मार्केट में 118 पहुंच गए. अब वो बंदा जो फॉरेन मार्केट में बैठा है उसको इंडियन गवर्नमेंट को 18 रुपए का टैक्स भरना है. मान लो ना भरे तो क्या कर लोगे. टू बी प्रिसाइज ऑन अ लाइटर नोट वी ऑलवेज से कि कोई कुछ लोग यहां से पैसे लेके भाग जाते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते. तो ये तो फॉरेनर है जो आउटसाइड इंडिया बैठा है, उसका तो क्या बिगाड़ लोगे तुम. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई टैक्स रिकवरी होगा ही नहीं. सो व्हाट इज एन इजी वे. इंडियन गवर्नमेंट कहां दौड़ेगा उसके पीछे. व्हाट इज एन इजी वे फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकवर द टैक्स. तो क्या इंडियन से टैक्स ले लो ना, रिसिपिएंट को बोल दो कि तू भाई 100 रुपया ही दे, 18 रुपया तू डायरेक्टली हमको ही दे देना एज ए टैक्स. सो हमारे लिए कलेक्शन बहुत ईजी हो जाए. सो इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज नॉट ऑन द सप्लायर हु इज फ्रॉम फॉरेन मार्केट, इट इज ऑन द रेसिपिएंट हु इज इन डोमेस्टिक मार्केट. And if the recipient is liable to pay tax, then it should be in course or furtherance of business of the recipient. हाँ, अब पॉइंट ये है कि अगर मान लो वो पॉइंट को मैं पकड़ के रखूं तो जो IFRS की बॉडी है जो सर्विस दे रही है वो मुझे दे, तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस, एंड सिंस इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस आई एम लायबल फॉर GST. बट जब वही बॉडी इंडिविजुअल स्टूडेंट को सर्विस दे रहे हैं, सो इट इज नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड इन दैट केस इट इज नॉट लायबल फॉर GST. तो फ्रेंड्स उसी पॉइंट को ओवर रूल करने के लिए यहां पे बोला हुआ है कि भाई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और furtherance of business, it is always liable for GST. So if it is in course or furtherance of business, then also it is liable for GST, and if it is not in course or furtherance of business, then also it is liable for GST, because this point very clearly says. अच्छा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक डिबेट आएगा. मैं बताऊं ना क्या, कि अगर मान लो कि वो बॉडी है जो मुझे सर्विस दे रहा है, तो भाई मैं तो GST में रजिस्टर्ड हूं और मेरा तो बिजनेस है, तो ऑब्वियसली मैं RCM में टैक्स भर दूंगा जो गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन के लिए ईजी भी होगा. बट वो इंडिविजुअल स्टूडेंट कैसे टैक्स भरेगा, वो तो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो क्या दैट इज वेयर देयर इज अ सेपरेट एग्जम्पशन प्रोवाइडेड. सी फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूं. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो अगर वो मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग होगा तो बराबर है कि मैं RCM में टैक्स भर दूंगा. बट अगर वो मेरे बिजनेस के कोरिलेटेड नहीं है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं लायबल फॉर टैक्स के हूं एज पर दिस क्लॉज. बट मैं भरूं कैसे, सेक्शन 7(1)(b) एप्लीकेबल हो जाता है. So that student who is receiving services from outside India is obviously importing a services for consideration, but it is nowhere in course or furtherance of his business. Then also, as per this 7(1)(b), he is liable for GST. But how is he going to pay GST? Supplier तो फॉरेन मार्केट में बैठा है, वो तो वैसे भी नहीं भरने वाला है. रेसिपिएंट वो कहाँ भरेगा, कहाँ गवर्नमेंट उसको ट्रेस करेगा, नहीं, वो तो अनरजिस्टर्ड है. हाउ विल ही पे टैक्स. सो दैट इज वेयर एक एग्जम्पशन अवेलेबल है. There is a separate exemption notification जिसमें ऐसा बोला है कि अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में जो रेसिपिएंट है वो इंडिविजुअल है,
and what he is doing is nowhere related to his business activity, then in that case the service will become exempt. वो एग्जम्पशन इसी क्लॉज को कंसिडर करके लाया है, क्योंकि अगर वो एग्जम्पशन वहां प्रोवाइड ना करे ना तो यहां पे वो इंडिविजुअल स्टूडेंट बेचारा फंस जाएगा. So as per 7(1)(b, this is liable for GST, but as per that exemption entry, जो मैं exemption chapter में already करवा चुका हूं, आपको exemption chapter का रेफर कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो. That exemption entry very clearly says कि भाई if there is an importation of services and it is by an individual person and is nowhere related to his business or commercial activity, then in that case it is eligible for exemption. यहाँ कहीं पे भी GST चार्ज नहीं होगा. So I think everybody understand this point कि भाई आपको GST भरने की जरूरत नहीं रहेगी. अब तीसरा पॉइंट भी इसमें अराइज हो सकता है. देखो, मैंने सर्विस रिसीव किया, मैं रजिस्टर्ड था एंड इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस, तो आई एम लायबल फॉर जीएसटी. दूसरा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट रिसीव करता है जो अनरजिस्टर्ड है और जो इसके बिजनेस के कोई एंगल से रिलेटेड भी नहीं है, तो इट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी एज पर एग्जम्पशन एंट्री. बाकी एज पर दिस पॉइंट इट इज लायबल, पर एज पर एग्जम्पशन एंट्री इट इज नॉट लायबल. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड पॉसिबिलिटी कि कोई स्टूडेंट नहीं, कोई बिजनेसमैन ही रिसीव कर रहा है. लेट्स से मैं ही रिसीव कर रहा हूं और मैं उसको अपने बिजनेस के लिए ही यूज कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज आई एम एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी. So in that case, how will I pay tax? So it's an importation of services by a business entity, but which is an unregistered business entity, and he is going to use that in course or furtherance of his business. So as per this clause, I am liable for GST. कोई बोले exemption वाला benefit मिलेगा, तो कि exemption वाला benefit बहुत clear था कि services are received, importation of service are received by an individual, which is not in relation to the business, then only exemption is available. So it should not related to the business or commercial transaction, but in this case it is definitely related to business or commercial transaction, तो वो exemption भी नहीं मिलेगा. So क्या, तो क्या अब वो unregistered entity को टैक्स भरना पड़ेगा, बट कोई बोले वो कैसे भरेगा, तो दैट इज वेयर एक और पॉइंट एप्लीकेबल होता है, एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वो पॉइंट आता है जहां पे बोला हुआ है कि कुछ लोगों को कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. वापस बोल रहा हूं, कुछ लोगों को कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. उस लिस्ट में एक पॉइंट है कि अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड. आई एम रिपीटिंग दिस. इन जीएसटी, इन सीजीएसटी एक्ट दैट इज सेक्शन 24, जहां पे बोला है कि few people are compulsorily required to get themselves registered, and one of the point in that is a person who is liable to pay tax under RCM is compulsorily required to get himself registered. So when a person is liable to pay tax under RCM under section 9(3), he needs to compulsorily get himself registered. So can I use the word as this particular person is doing importation of services and is liable to, and is doing it for business purpose, so exemption नहीं मिलेगा. So exemption नहीं मिलेगा तो is liable to pay tax under RCM, and since he is liable to pay tax under RCM under section 9 subsection 3, so he is compulsorily required to get himself registered, और उस केस में उसे टैक्स भरना ही पड़ेगा, और वो टैक्स भरेगा even if it is not registered, he needs to get himself registered and he needs to pay the टैक्स. सो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का क्लॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. ऑलवेज याद रखना कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन बिजनेस के रिलेटेड है कि नहीं है. एज पर 7(1)(b इट इज लायबल फॉर जीएसटी. अब अगर बिजनेस के रिलेटेड नहीं है और जो बंदा है वो इंडिविजुअल है जो अदर देन बिजनेस के लिए उसे यूज कर रहा है, तो एग्जम्पशन एंट्री बीच में आएगा. अगर बिजनेस के रिलेटेड है तो पॉइंट ये है कि मैं जो सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है कि अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है. अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम में टैक्स भर देना है. अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो दैट मीन्स कंपल्सरी गो एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड देन पे टैक्स अंडर RCM. So I think this is what we understand as overall picture of whether or not in course or furtherance of business. याद रखना किसका course or furtherance of business, जिस बंदे को टैक्स भरना है. Let me give you some more examples to get the clarity. मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉरेन में कोई आर्किटेक्ट है, उसका वो आर्किटेक्ट है जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं. किसके लिए? तो हम लोगों को नवकार हाउस 4 कंस्ट्रक्ट करना है. यस फ्रेंड्स, नवकार हाउस 1 आपने देखा, 2 आपने देखा, 3 आपने देखा, नीमरा आपने देखा, और लेट अस से हम लोग एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो उसके लिए हम किसी आर्किटेक्ट को पकड़ के ले आते हैं फॉरेन मार्केट से. सो आर्किटेक्ट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ नवकार हाउस 4. सो कैन आई से कि कोई फॉरेन आर्किटेक्ट है, दैट मीन्स वो आउटसाइड इंडिया से अपनी सर्विस देगा. सो कैन आई यूज द वर्ड एज इट इज एन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, द रेसिपिएंट इज इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया. So that means it is purely importation of services. Now importation of services
obviously it will be for consideration, तो कुछ consideration भी होगा. Now the important point is that Navkar is doing that in relation to course or furtherance of his business. And since Navkar is doing that in relation to course or furtherance of his business, so nowhere it is liable for, it is liable for GST and Navkar RCM में tax भर देगा. Now let us say जो आर्किटेक्ट है हम उसको नवकार हाउस 4 के लिए नहीं, मान लो कि हमारे जो ओनर है हितेश सर, उनका पर्सनल बंगलो कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए आर्किटेक्ट को पकड़ के ले आते हैं. सो आर्किटेक्ट इज अगेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सो इट इज नथिंग बट अ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया. सो इट विल क्वालिफाई एज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस for consideration, not in course or furtherance of business. So again, as per 7(1)(b, it is supply. But because it is a personal bungalow construction, nowhere related to business activity, it is eligible for exemption under entry number 7, subsection, under exemption entry, not as per section 7(1)(b). So as per 7(1)(b, it is liable for GST, but as per exemption entry, this is straight away eligible for exemption. बट यस, आप अगर कोई पूछे 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो होगा. बिजनेस के लिए हो तो भी सप्लाई होगा, एंड अदर देन बिजनेस के लिए हो तो भी सप्लाई तो होगा ही. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स. फिर से गूगल का एग्जांपल लेते हैं, या गूगल या कोई भी और ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से फॉरेन ऐप है, हम लोग उनसे बेनिफिट ले रहे हैं. सो लेट अस से कोई फेसबुक की बात करते हैं, हम लोग फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारी सर्विस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और उसके लिए वो हमसे चार्जेस ले रहे हैं. नाउ फेसबुक इज एन फॉरेन कंपनी, वी आर एन इंडियन कंपनी, एंड जो पोर्टल पे एडवर्टाइज होगा उसका जो डोमेन आईडी होगा वो भी इंडिया में होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑल्सो बी इंडिया. सो इट इज एन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. And when I say importation of services from outside India, the recipient is in India and place of supply is in India, and it is for consideration. So it's an importation of services for consideration, and more important, it is in course or furtherance of business also. So that is always liable for GST. So point is, importation होना चाहिए, consideration होना चाहिए, and in course or furtherance of business होना चाहिए. अच्छा, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और रादर नया ही एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से हम लोग नवकार इंस्टीट्यूट में कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फॉरेन मार्केट से किसी फैकल्टी को बुलाते हैं. वो फॉरेन से आएंगे, एक हफ्ते के लिए सब्जेक्ट पढ़ा के वापस चले जाएंगे. तो जो फैकल्टी आएंगे फ्रॉम फॉरेन मार्केट, कैन आई से इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सो सप्लायर इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, द रिसिपिएंट इज इन इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया. So can I say importation of service for consideration in course or furtherance of business? अब मान लो उसी फैकल्टी को हमारे जो ओनर है हितेश सर, उनके बेटे को पढ़ाने के लिए हितेश सर बुलाते हैं in individual capacity. तो उस केस में it is importation of service for consideration, nowhere in course or furtherance of business, but then also as per section 7(1)(b, it is considered as supply. फिर अलग बात है कि exemption का बेनिफिट मिल जाएगा, but as per 7(1)(b, whether it qualifies as supply or not, so that is where we understand it is yes, qualifying as supply. So I think more or less everybody understands the picture of what is considered as supply as per section 7(1)(a as well as per section 7(1)(b. Now let us move ahead and let us try and discuss the next category, that is section 7(1)(c. And 7(1)(c की बात करें तो we refer to schedule 1. बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज को सप्लाई में डाला हुआ है विच आर कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन इफ दे आर विदाउट कंसिडरेशन. सो बोले कंसिडरेशन हो तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, कंसिडरेशन ना हो तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, बट एज पर शेड्यूल 1 दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई. सो कुछ 4-5 अलग अलग एक्टिविटीज है जिसको लिस्ट किया हुआ है और बोल दिया है कि भाई तुम कुछ भी करो, हमारे हिसाब से ये ऑलवेज सप्लाई रहेगा. So let us try and understand all these activities one by one. Yes friends, now let us understand the schedule 1 and its provisions. Now, before I go to schedule 1, I want to teach those provisions of schedule 1 without going to schedule 1. Let us try and understand this. See, let us say first point where we have talked about the supply. So we have said that there should be some supply and it should be for a consideration and it should be in course or furtherance of business. So मान लो के example लेते हैं कि मान लो कि मेरा कपड़े का शोरूम है. तो अगर मेरा कपड़े का शोरूम है, कोई कस्टमर आता है, ऑब्वियसली मैं उसे कपड़े बेचूंगा और सामने कंसिडरेशन लूंगा. सो आई कैन से इट वेरी इजीली कि इट्स अ सप्लाई and it is for consideration and it is in course or furtherance of business and it is always liable for GST. Now let us modify this transaction a bit. Let us say मेरे ही कपड़े के शोरूम में गारमेंट्स बनाता हूँ, शर्ट पैंट बनाता हूँ, मान लो वहाँ से बेचता हूँ मैं. मेरे ही शोरूम में माई सिस्टर कम्स
and she asked for some sort of clothes, and I provide her the clothes. And since I provide her clothes, she is offering me consideration, but since she is my sister, I'll not take any consideration. So the point is, what I did was a supply. What I was doing was also my business. The only point which is missing is consideration, and since there is no consideration, this cannot be treated as supply. But don't you think so logically कि अगर मैं अपनी सिस्टर को वो दे रहा हूं तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे. So there is no monetary consideration involved, but there is a deemed consideration involved in this transaction, that I am benefiting my own relative. या तो मैं अपने रिलेटिव को बेनिफिट दे रहा हूं, सो एक सेटिस्फेक्शन है जो मुझे यहाँ पे कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए. एंड एक्चुअली स्पीकिंग वही चीज शेड्यूल 1 में आ रहा है. मैं बताऊं, शेड्यूल 1 का सेकंड नंबर का पॉइंट है जहां पे हम कुछ एक्टिविटीज को विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे. उसमें सेकंड नंबर का ही पॉइंट है कि व्हेन यू टॉक ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ व्हाट, सो कि यू अंडरस्टैंड कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, किसका कर रहे हो फ्रेंड्स? गुड्स का सप्लाई कर रहे हो. सो आप कर रहे हो सप्लाई, आप कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स. सो इट वेरी क्लियरली सेज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, और डिस्टिंग बाद में करते हैं, पहले रिलेटेड पर्सन की बात करते हैं. तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन when made in course or furtherance of business. So whenever related persons will make a transaction, आप लॉजिकली तो सोचो, मैंने सप्लाई किया था वो तो था ही, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था वो भी था. द ओनली पॉइंट विच वॉज मिसिंग इज कंसिडरेशन. द टर्म कंसिडरेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म कॉल्ड रिलेटेड. सो अल्टीमेटली सप्लाई के लिए, क्वालिफाई होने के लिए सप्लाई होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एज पर 7(1)(a. As per 7(1)(c) referred as Schedule 1, supply होना चाहिए, related person होना चाहिए, और in course or furtherance of business होना चाहिए, बस. So the term consideration will be replaced by the term called relative, which will be taken as deemed consideration, and accordingly उसके ऊपर GST apply हो जाएगा. So supply of goods or services between, जो जैसे मैंने सिस्टर की बात की, तो मैंने अपने सिस्टर को गुड्स सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स to the related person or between related person when made in course or furtherance of business as per Schedule 1. Point number 2, it is always liable for GST. Let me give some more examples, friends. मेरा काम है GST एज अ कंसल्टेंट. मैं अक्रॉस गुजरात लॉट ऑफ क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा हूँ और सबके सामने कंसिडरेशन रिसीव कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग इज सप्लाई, and for which I am getting a consideration, and what I am doing is in course or furtherance of my business, and definitely I am liable for GST. Now my father is actually into the garments business, and let us say tomorrow morning he faces certain GST issue in garment business. So because of that he comes to me and approaches me and asks for some sort of clarification. So when he asks for some sort of clarification, so obviously I will guide him. Now the point is, can I say what I'm doing is supply and what I'm doing is also my business? The only point is, since he is my father, I'm not going to charge any consideration. In fact, मैं मांगूंगा तो वो देंगे भी नहीं. But the point is, there is a supply, there is course or furtherance of business. The only point which is missing is consideration, which will be replaced by the term called related person. So it says supply of goods, supply of services between related person when made in course or furtherance of business is always liable for GST. Let us look at one more point on this. Let us say my sister is a doctor. So she is a doctor, she helps me with regard to, let us say, one of my injury or illness that I have faced. So I approach her, she helped me, she suggested me 5-10 medicines which I have taken, ultimately I got cured. So can I say my sister is actually giving me a service and it is her business to give service? Now the only thing which is missing is, as a sister, when I'll go, as she is my sister, when I'll go and give consideration, she may not accept it. So what is important is here the term related person will come into picture. So it's a supply of services between related person when it is done in course or furtherance of business. In fact, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे clearly बोला है when made in course or furtherance of business means जो पार्टी सप्लाई कर रहा है उन्होंने अपने course और furtherance of business में ये प्रोवाइड किया है. अगर मान लो कि उनका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो तो ये कोई एंगल से जीएसटी के लिए लायबल नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूं ना उनके. लेट्स से कि मान लीजिए कि मैं अपने वाइफ को मोबाइल गिफ्ट में देता हूं. मैं अपनी वाइफ को जब मोबाइल गिफ्ट में दूंगा तो डोंट यू थिंक सो कि व्हाट आई डिड वाज सप्लाई?
ऑब्वियसली कंसिडरेशन नहीं है बट रिलेटेड पर्सन है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बट वेदर इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस, आंसर इज नो. सो व्हेन आई हैव नॉट मेड दैट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता. नहीं तो फ्रेंड कोई किसी को गिफ्ट ही नहीं दे सकता, आप किसी को भी गिफ्ट दोगे ये पॉइंट बीच में आ जाएगा. सो पॉइंट इज वेरी क्लियर, उसमें कहीं पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. लेट अस से अभी मैंने आपको मेरी सिस्टर का एग्जांपल दिया था, वो डॉक्टर है तो मैं उनके पास एडवाइस के लिए गया था. अब मान लो कि वो डॉक्टर नहीं है बट शी इज एन एल्डर सिस्टर एंड शी इज एन एक्सपीरियंस वन. सो व्हेन आई फेस let's say some viral or some illness or some injury, I approach her and I ask for guidance. She give me guidance also. So it's a supply of services between related person, but whether it is a business to do so, if not, तो उसके ऊपर कहीं पे भी GST charge नहीं होगा. So the important point is there should be some supply. There should be a supply of goods or supply of services between related person, and it should be made in course or furtherance of business. So all the things should be matched, then only it is liable for GST. आज नवकार की बात करते हैं फ्रेंड्स. सो नवकार की बात करें तो हमारे अलग अलग बॉडीज है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है. एक है नवकार इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, जहाँ पे हम CACS पढ़ाते हैं. एक हमारा नवकार पब्लिक स्कूल है जहाँ पे हम लोग स्कूल्स के लेवल पे पढ़ाते हैं. एक हमारी नवकार कंसल्टेंसी सर्विसेज है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करना कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू GST, विथ रिगार्ड टू इनकम टैक्स एंड ऑल दैट. अब मान लो कि कल सुबह नवकार इंस्टीट्यूट को कोई GST के लिए प्रॉब्लम आया तो ऑब्वियसली नवकार कंसल्टेंसी सर्विसेज सर्विस देगा ना. So Navkar Consultancy Services and Navkar Institute both are actually related party. क्यों? तो related party की definition करवाऊंगा, तब समझा दूंगा कि क्यों ये related है. But both are considered as related party. तो जब Navkar Consultancy Services Navkar Institute को सर्विस देगा, so it's a supply of service between related person और Navkar Consultancy Service का तो ये बिजनेस ही है. सिमिलर वे मान लो कि कल सुबह नवकार कंसल्टेंसी सर्विस में कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जो नवकार इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा. सो नवकार इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू नवकार कंसल्टेंसी सर्विसेज व्हिच इज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड इट इज मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो द पॉइंट इज देयर शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स, देयर शुड बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज between related persons or between distinct persons and made in course or furtherance of business. So it is always liable for GST. So I think everybody understand this particular issue which is what we are talking about. अभी इसमें एक और component बाकी है and that is this definition of the term called distinct person. In fact related person भी बाकी है but distinct person से start करते हैं. So when I say distinct person, किसको distinct माना जाएगा? So let us try and understand that distinct person terminology. Theoretically मैं बाद में समझाता हूँ, पहले practically discuss करते हैं. So I think everybody is aware that हमारा जो GST में registration होता है वो PAN based होता है. So जब PAN based registration होता है तो एक ही PAN कार्ड में registration करवाने की बात है, but along with that PAN based registration we also follow the norm of state wise registration. So when I say state wise registration, so what will happen is आपके registration number में first 2 digit आपके state के होंगे, उसके बाद जो 10 digit होंगे या अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होगा वो आपका पैन कार्ड होगा. So आपका स्टेट और पैन कार्ड दोनों लॉक हो जाता है. Now what will happen is अगर मैं गुजरात में बिजनेस कर रहा हूं तो गुजरात का स्टेट कोड 24 है, तो 24 के बाद मेरा पैन कार्ड लगेगा. अब अगर मैं महाराष्ट्र में जाता हूं बिजनेस करने के लिए तो फिर मेरे को महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसमें मेरे को महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन कोड यूज होगा, दैट इज 27. तो 27 के बाद पैन कार्ड लगेगा. सो द पॉइंट इज मैं जिस जगह ऑपरेट कर रहा हूं मुझे वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. नाउ द कंसर्न इज व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल ऑफिसेज, आई हैव एन ऑफिस इन गुजरात एज वेल एज इन महाराष्ट्र. तो जो गुजरात की ऑफिस होगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा 24 बाय पैन कार्ड और महाराष्ट्र की ऑफिस होगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा 27 बाय पैन कार्ड. Now the point is दोनों में पैन कार्ड तो कॉमन ही हो गया. एंड कैन आई यूज द वर्ड एज एक ही पैन कार्ड में मैंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाए और वो हर रजिस्ट्रेशन को GST की लैंग्वेज में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, उसे अलग माना जाता है. सो एक्चुअली पैन कार्ड एक है, दैट मीन्स एज पर इनकम टैक्स person is only one. As per Companies Act, the person is only one. The point is, though as per legal aspect, the person is only one, but we have obtained multiple registrations in GST. So in GST, each this person will be called as a separate person, which is legally called as distinct person.
नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से कि जब एक ही पैन कार्ड में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस होते हैं तो वो हर रजिस्ट्रेशन को जीएसटी की लैंग्वेज में अलग माना जाएगा. दो दैट पर्सन इज ओनली वन, बट फॉर जीएसटी वी विल कॉल देम ए सेपरेट पर्सन, सो दैट इज व्हाई इट इज डिस्टिंक्ट पर्सन. जब इन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होता है ना, तब भी फ्रेंड जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. द बेस्ट एग्जांपल इज, लेट अस से गुजरात में मेरा मैन्युफैक्चरिंग होता है और महाराष्ट्र में मैं रिटेल शोरूम है, वहां से ये गुड्स बेचता हूं. तो जब मैं गुजरात में गुड्स बना के महाराष्ट्र ट्रांसफर करूंगा, सो कंपनी एक ही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल बिजनेस एक ही कंपनी चला रही है. अगर मान लो कि दोनों की कंपनी अलग होगी तो वो रिलेटेड पर्सन में आ जाएगा, और अगर दोनों की कंपनी एक है बट स्टेट वाइज अलग रजिस्ट्रेशन है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है, जहां पे हम बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो ब्रांच ट्रांसफर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टर्म distinct person, I mean for purpose of GST under this category. So let us try and understand both this definition, distinct person as well as related person, from theoretical perspective, friends. Yes, friends, let us understand the definition of distinct person. When I say distinct person, it has been very clearly defined under the GST Act. Rather, it is given under section 25 of GST Act. So it is not given with the other normal definitions. It is given under section 25. Registration chapter में मिलेगा, friends, आपको. ऐसा बोला है कि एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन. सो ईदर ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, and such more than one registrations are required to be obtained in one state or a union territory, or maybe multiple states and a union territory. Then for each such registration the person shall be treated as distinct person under the GST Act. The person shall be treated as distinct person under the GST Act. So provision is very clear that जब भी आपके multiple registrations होते हैं under one PAN, so you have one common PAN, a person is one only, he is having only one PAN, but is going for multiple registrations. Why is going for multiple registrations? तो one of the point which I have already taught is, अगर आप multiple states में operate कर रहे हो तो हर state के लिए आपको state wise, I mean अलग registration लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास state wise registration होता है. The other possible aspect is, अगर मान लो कि आप मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप कोई एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो, बट एक स्टेट में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप मल्टीपल वर्टिकल्स में काम कर रहे हो, यानी मान लो कि आप एक बाजू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, दूसरी बाजू आपका कोई रिटेल या होलसेल का बिजनेस है या फिर सर्विस का बिजनेस है, तो देन ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज सेपरेट वर्टिकल्स, एंड फॉर ईच सेपरेट वर्टिकल यू मे गो फॉर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन विच इज अलाउड इन जीएसटी. सो अगर आप अलग अलग स्टेट में हो तो आप 100% अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाओगे. अगर आप एक ही स्टेट में हो तो आप नॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन करवाते हो, बट आपके पास भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने के पावर अवेलेबल है. सो अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाए तो हर अलग रजिस्ट्रेशन को हम इन द आईज ऑफ जीएसटी डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, और जब इन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो इट इज डेफिनेटली कंसिडर्ड एज पर Schedule 1 liable for GST, because Schedule 1 very clearly says that supply of goods or services between distinct person made in course or furtherance of business is liable for GST even if it is done without consideration. So अगर वो with consideration है तो वो ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से liable for GST है, और अगर वो without consideration है तो as per Schedule 1 वो liable for GST है, provided the term consideration will be replaced by the term distinct person. Similar way, let us try and understand the definition of what is called as related person. तो जब हम related person की definition की बात करेंगे, so there are different clauses provided with regard to the same. So let us look at the same. Now let us talk about the related person definition, friends. So when I say related person, so it has been already defined under the law. Related person के बारे में क्या बोला हुआ है? ऐसा बोला है, person shall be deemed to be related person if is covered by any of the following points. So different points are provided. One of the first point that is given is the person is covered by the terminology of what is called as officers and the directors in the business of one another, or each other rather I would say. So for example, let us say कि अगर हम बात करते हैं एक कंपनी है, let us say नवकार की बात करते हैं, नवकार में मान लीजिए कि I am serving as a director. So when I am serving as a director in the business of Navkar, now Navkar is owned by Hitesh sir, so I am serving as a director in the business of Hitesh sir.
Let us say, side by side, tomorrow I open some financial advisory firm. Over there, Hitesh sir supports me as an advisor or as an independent director. So can I use the word as in his company I am serving as director and in my company he is serving as director. So we can say such persons are officers or directors on one another's business. So जब हम एक दूसरे के business में as an officer or as a director काम करते हैं, तो in that case we can very clearly say that we are a related person. So that is I think one of the first aspect. Let us talk about the second aspect. So it very clearly says you are legally recognized as partners. So there is a firm in which you both are working as a partner. So मेरी अपनी खुद की firm है called Dhaval, Gandhi and Associates, जो एक CA firm की तरह registered है, proprietorship firm है. And let us say there is another firm of Hitesh sir where it is Hitesh Shah and Company. Let us say that is also a CA firm which is registered as a CA firm with the ICI. Now the point is, मान लो कि हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और अगर हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो उसके कारण वी विल बी कंसिडर्ड एज लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स एंड व्हेन वी आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर्स देन वी आर बाय डिफॉल्ट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. फिर वो ट्रांजैक्शन मेरी और उनकी फर्म में इंडिपेंडेंट बेसिस पे हुआ हो ना तो भी वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली हम दोनों कोई एक जगह पे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल हो रहे हैं. सो सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस. So I think that is the second number point which we need to understand. Moving ahead with that, the third aspect which they say as they are serving as an employer-employee, I think everybody would understand that. अगर आप कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो तो you will be considered as a related person to that company. इनफैक्ट मैं बताऊं इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे. वो प्रॉब्लम्स मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, बट बिफोर दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ट्रांजैक्शन है वो ऑलवेज रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ ही जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड एज पर दिस पॉइंट. थर्ड नंबर पॉइंट आई वुड से. द फोर्थ नंबर पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल. सो इट सेज एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. So let us try and understand. There is a company called A Limited and there is a company called B Limited. And I as an individual is holding more than 25% of both the companies. So if that happens, then because of me, A Limited and B Limited will be considered as related person. मैं वापस बोल रहा हूँ. There is a company called A Limited, there is a company called B Limited. मेरे पास A Limited के 30% शेयर्स है और मेरे पास B Limited के 25% शेयर्स है. So can I say I hold 25% or more in both the organization? So because I have a holding control in both the organization, so both this organization will by default fall under the related party definition. So in future, if any transaction will take place between both the organizations, then it will be considered as related party transaction, applying point number 4. ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स. मान लीजिए कि अगर मान लो टाटा सन्स की बात करते हैं. टाटा सन्स ओन्स आई थिंक व्हाट 70% शेयर्स ऑफ TCS and Tata Sons is also owning I think some 30% shares of let us say Tata Steel. Now the point is, since Tata Sons holding 70% shares in TCS and 30% shares in Tata Steel, so the point is Tata Steel and TCS will be considered as related party transaction. So अगर उन दोनों के बीच में कभी भी transaction होगा तो it will always remain a related party, applying this fourth number point. Let us move ahead with this. The fifth number point is very clear, very easy I would say rather, that one of them directly or indirectly controls the other. So I think holding subsidiary is best example. कि holding company obviously subsidiary company को control करता है. So obviously they will be considered as related party transaction. फिर holding subsidiary के साथ transaction करे कि subsidiary holding के साथ transaction करे. The point is one of them is controlling the other one. So I think that is where fifth point would cover. And I think to a great extent this should also cover chain holding also. Okay, for example, there is a main company which has a subsidiary and the subsidiary is also having a subsidiary. तो जो main company और जो second subsidiary है उन दोनों के बीच में transaction हो, then also we can consider that it has been indirectly controlled, and because of that it will be considered under the definition of related party as per point number 5.
Moving ahead with that, there is 6th number point, which is almost equal to 4th number point. That says both of them are directly or indirectly controlled by a third person. So for example, if I say कि there is a company called A Limited जिसको कंट्रोल कर रहा हूँ, there is a company called B Limited जिसको again मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, so I am a third person who is controlling A Limited and I am as well as B Limited. So because of that, A Limited and B Limited will be considered as related party. So logically speaking, point number 4 and point number 6 दोनों के दोनों same ही है. The only difference is, I think point number 4 talks about the company structure. And point number 6 में ऐसा कहीं पे भी company structure नाम का term use नहीं हुआ है, because there is no voting right or shares or stocks or anything. More important, point number 4 talks about controlling 25% or more of the voting shares, while point number 6 talks about the overall control. So what I perceive or what I prima facie say is कि अगर मान लो कि there is a company called A Limited and B Limited और मैं A Limited के 25% शेयर ओन करूं और मैं B Limited के भी 25% शेयर ओन करूं, तो it will be A and B will be called as related as per point number 4. But मान लो कि there is a partnership firm called A and Company and there is another partnership firm called B and Company, और मान लो कि मैं ये दोनों को कंट्रोल कर रहा हूं, तो it cannot be covered under point number 4. So now it will be covered under point number 6. Because in point number 6 they have talked about control and that control can be exercised by any way. While in point number 4 they have talked about 25% or more of the voting right control and that can be exercised only by acquiring shares. So 25% in terms of shares है. ये भी अच्छा है कि वहाँ पे control 51% का नहीं बोला है. Generally control comes with 51% stake. But control के लिए नहीं बोला है 6th number के point में, फोर्थ नंबर के पॉइंट में कि फुल कंट्रोल की बात नहीं है. 25% या उससे ज्यादा कंट्रोल करोगे तो भी वो पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा. सो कंपनी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन रिलेटिवली इजी हो गई है कि भाई वहां पे कोई भी टाइप का कंट्रोल चलेगा जिसमें 25% और मोर होगा तो चलेगा. यू डोंट नीड एंटायर 51% कंट्रोल. बट 6 नंबर का पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि अनलेस फुल कंट्रोल विल बी देयर, दैट मीन्स 51% कंट्रोल विल बी देयर, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंट्रोल. ये आई थिंक एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड, वुड अग्री विद द पॉइंट नंबर 6. बट यस, प्राइमा फेसी हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे कि 4th नंबर का पॉइंट है वो कंपनी स्ट्रक्चर के लिए और 6 नंबर का पॉइंट है अदर टाइप ऑफ एंटिटीज के लिए. जैसे कि होता है ना, देयर इज अ ट्रस्ट, लेट्स से ए ट्रस्ट है और बी ट्रस्ट है और हम दोनों उसके मैनेजिंग ट्रस्टी है. सो हम लोग उन दोनों के मैनेजिंग ट्रस्टी है. सो बिकॉज वी कंट्रोल ए ट्रस्ट, वी कंट्रोल बी ट्रस्ट, तो ए ट्रस्ट एंड बी ट्रस्ट आर आल्सो कंसिडर्ड एज रिलेटेड. नाउ दैट एक्सरसाइज विल कम एज पर पॉइंट नंबर 6, नॉट एज पर पॉइंट नंबर 4. बट अल्टीमेटली मोर और लेस दोनों का मतलब तो सेम ही है. इनफैक्ट ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट से ही आती है. अगर आपको ध्यान हो तो कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट ऐसी ही डेफिनेशन है, वहीं से ये पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है. सो आई थिंक एवरीबडी वुड अग्री. इनफैक्ट कस्टम्स एक्ट में तो एग्जैक्टली सेम है. अगर आपको ध्यान हो, कस्टम्स एक्ट में यही सारे पॉइंट्स है जिसको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाता है. Now let us move ahead. There is one more point. There is 7th number point with regard to this, which is actually the reverse of 4th and 6th, which says together they directly or indirectly control a third person. So let us say there is a company called A Limited. वो A Limited मेरी कंपनी में 30% शेयर ओन कर रहा है. एंड देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड बी लिमिटेड, वो बी लिमिटेड भी मेरी कंपनी में 40% शेयर ओन कर रहे हैं. सो ए लिमिटेड मेरी कंपनी में 30% शेयर ओन कर रहे हैं, बी लिमिटेड मेरी कंपनी में. सी आगे 4th नंबर का पॉइंट क्या था कि मैं ए लिमिटेड में कंट्रोल कर रहा हूं, मैं बी लिमिटेड में कंट्रोल कर रहा हूं और दोनों में मैं 25% से ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूं. तो बिकॉज ऑफ दैट ए और बी रिलेटिव हो गए. अब मैं रिवर्स बोल रहा हूं. ए लिमिटेड मेरी कंपनी में 30% शेयर ओन कर रहा है और बी लिमिटेड मेरी कंपनी में 40% शेयर ओन कर रहा है. तो व्हेन दे आर पुट टुगेदर दे ओन 70% इन माय कंपनी. सो दे कंट्रोल मी. So because they control me, so they will be considered as related party as per 7 number point. So A Limited मेरी कंपनी में 30% शेयर ओन करे और B Limited मेरी कंपनी में 30% शेयर ओन करे, तो together they have a controlling stake in my business. So because of that A Limited and B Limited will be considered as related party as per point number 7. So I think this is what we understand as 7 number point. तो कौन related party की definition में यहाँ पे आएगा.
बट मोर और लेस आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड के 7 नंबर का पॉइंट में कौन कवर होगा. सो दिस इज व्हाट वी कंसिडर्ड एज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. Yes, plus certain explanations have been also given under this provision, which says कि अगर हम लोग 7 नंबर के पॉइंट के बाद बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज 8 नंबर पॉइंट इज दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. सो ये एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में है कि अगर सेम फैमिली के वो मेंबर्स है तो भी उसे हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में काउंट कर लेंगे. सो हस्बैंड वाइफ है, फादर मदर के साथ जो रिलेशन है, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज अंडर द रिलेशन ऑफ related under the definition of related party. In fact, this comes as an explanation. Actually, वो 7 points के अंदर नहीं है. इनफैक्ट आगे भी दिया हुआ है द टर्म पर्सन, क्योंकि हर एक जगह पे पर्सन की बात है, तो पर्सन मीन्स ओनली लीगल पर्सन और इंडिविजुअल पर्सन और बोथ. सो दैट इज वेयर अ नोट हैज बीन प्रोवाइडेड विच सेज द टर्म पर्सन आल्सो इंक्लूड्स लीगल. सो आर्टिफिशियल पर्सन को भी यहाँ पे कवर कर लिया है. सो इंडिविजुअल पर्सन को तो किया ही है, बट लीगल पर्सन को भी कवर किया है. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज गिवन विच सेज दैट द पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर, in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessioner, however described, of the other. So basically they have tried and bring the point of sole agent, sole distributor and sole concessioner. So अगर मान लो कि आपके बिजनेस में आपने कोई सोल एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज यू आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी डेफिनेटली कवर्ड अंडर द रिलेशनशिप ऑफ रिलेटेड पार्टी. सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो पॉइंट है ना कि द पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ ईच अदर. सो सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनर है. सो ऑब्वियसली वो हमारे एजेंट है तो वो अच्छा बिजनेस करेंगे, एंड वी आर डेफिनेटली ऑफ दैट इंटेंशन, क्योंकि वो अच्छा बिजनेस करेंगे तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही. सो ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस, एंड मोर इम्पोर्टेंट ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस, क्योंकि वही मेरा उसी से तो मेरा उसका बिजनेस मेरे से तो चलता है, तो ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बिजनेस, बिकॉज उसका बिजनेस जितना अच्छा होगा उतना मेरा बिजनेस अच्छा होगा. सो सोल agents, sole distributors, sole concessioners, they are considered as related because वो interested in the business of each other वाले point में cover हो जाता है. So I think more or less everybody understands that what do we mean by the terminology of related party. So इसे हम broad sense में related party की definition consider करते हैं. Now let us understand few important points out of this definition. Now, as we have seen the entire definition of what is called, who is called as related party, now I'll just pinpoint one of the issue, like one of the first point, one of the important point is they say all employees and employer are covered by related party definition. Now, if this happens, this becomes the most pathetic definition that can ever be created. मैं रीजन समझाता हूँ ना फ्रेंड्स. एक्चुअली होता क्या है पता है, मान लो कि एज एन एम्प्लॉय मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो जब मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो कहना इसे मैं सर्विस दे रहा हूँ, मेरा तो काम ही है वो सर्विस देना, तो मैंने सर्विस दिया और एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देता है, तो देन इट इज कंसिडर्ड एज लाइबल फॉर जीएसटी एज पर ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सेक्शन 7(1)(a) बीच में आ गया. क्यों? तो कि इट्स अ सप्लाई एंड इट इज फॉर कंसिडरेशन एंड इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मैंने आपको बिजनेस की टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि जब आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो, सो एज अ होल्डर ऑफ द पोजीशन, एज अ होल्डर ऑफ द ऑफिस, व्हेन यू सर्व इट इज एज गुड एज यू आर डूइंग बिजनेस. तो आप सर्विस दे रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो और आप को कंसिडरेशन भी मिल रहा है. सो दैट इज ऑलवेज लायबल फॉर जीएसटी. और मैं बताऊं उसको और प्रॉब्लम कब होगा, जब मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो और वो आपको सर्विस आपने दी और वो आपको सैलरी नहीं देते, तो अगर वो सैलरी ना देना तो वो यहाँ पे जीएसटी में आ जाएगा. कोई बोले यहाँ पे कैसे आएगा, कैन आई से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर आर रिलेटेड पर्सन. तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर आर रिलेटेड पर्सन, सो इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो द टर्म कंसिडरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय द टर्म रिलेटेड पर्सन. शेड्यूल 1 बीच में आ गया, क्योंकि शेड्यूल 1 में हमने रिफर किया ना कि रिलेटेड पर्सन हो तो कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है. सो अगर मान लो कि मैं एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, वो मुझे सैलरी दे रहे हैं, तो वो एज पर ओरिजिनल सप्लाई डेफिनेशन सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई है. और अगर वो मेरे को सैलरी नहीं दे रहे हैं तो एज पर शेड्यूल 1 वो सप्लाई. इन शॉर्ट, इन एवरी केस आई एम लायबल फॉर जीएसटी. तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया.
So again this problem has to be avoided and I have already said many times that जब भी कोई problem create होता है ना सप्लाई की definition में तो उसको avoid करने के लिए एक ही clause बीच में आता है and that is schedule 3. तो schedule 3 के 2 points मैं आपको already सिखा चुका हूँ. सबसे पहले हमने discuss किया था actionable claim cannot be treated as supply of goods or services. फिर मैंने आपको सर्विस की डेफिनेशन के टाइम पे बताया कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता. दैट इज अगेन इन रिलेशन टू द schedule 3. Now there is one more point which is given in schedule 3 and that is the first number point which says an employee to an employer in course of or in relation to employment. So when an employee provides services to an employer in course of employment or in relation to employment, it is covered by schedule 3. And that means it is neither be called as supply of goods nor be called as supply of services. So ये schedule 3 आपके दोनों पॉइंट को ओवररूल कर देगा. अगर मान लो कि एज एन एम्प्लॉई आप सर्विस देते हो और आपको सैलरी मिलता है तो एज पर सेक्शन 7(1)(a इट इज सप्लाई, बट एज पर शेड्यूल 3 इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. और अगर मान लो कि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं देता है सो एज पर शेड्यूल 1 इट इज सप्लाई बिकॉज इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो एज पर शेड्यूल 1 इट इज सप्लाई बट एज पर शेड्यूल 3 इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. सो बेसिकली शेड्यूल 3 का फर्स्ट पॉइंट दोनों पॉइंट को ओवररूल कर रहा है, जो बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि सप्लाई बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज लायबल फॉर जीएसटी. अब यही चीज बहुत सारी डिबेट क्रिएट करता है. क्यों डिबेट क्रिएट करता है? सो कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द टर्म इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट. सो लेट अस से देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑलवेज हैपेंस. सो अगर उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है और अकॉर्डिंगली आप वो कर रहे हो तो इट शैल बी ट्रीटेड एज इट इज इन रिलेशन टू और इट इज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बट व्हाट अबाउट दोज एस्पेक्ट विच आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या उसे माना जाएगा इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? लेट अस टेक एन एग्जांपल. वैसे तो मैं नवकार में एम्प्लॉय नहीं हूं. आई एम प्रोवाइडिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट सर्विसेज टू नवकार एंड फॉर विच दे गिव मी कंसिडरेशन. बट मान लो कि मैं एम्प्लॉई हूं नवकार में और मेरे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको जीएसटी पढ़ाना है और मैं जीएसटी पढ़ाता हूं और उसके लिए मुझे पैसा मिले तो आई अग्री दैट इट इज इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट विच वी हैव अग्रीड. बट मान लो कि कल सुबह वो मुझे रिक्वेस्ट करे कि भाई आपके कैन यू टीच इनकम टैक्स ऑल्सो? आई वुड से नो, आई एम नॉट अवेलेबल, बट दे रिक्वेस्ट मी फर्दर, सो आई विल टेक 1 or 2 session of income tax. If I take 1 or 2 session of income tax, then in that case it may so happen that I am doing some activity which is not part of my employment agreement. So it becomes over and above the employment agreement. So the problem is if it is over and above the employment agreement, then I doubt that the word in course of or in relation to employment, because this is not in relation to employment. Employment agreement does not cover this. So it is over and above the employment. So in that case, I think GST would come in picture. अगर उसके लिए वो मुझे पैसे दे तो सेक्शन 7(1)(a में आता है. अगर उसके लिए वो मुझे पैसे ना दे तो सेक्शन 7(1)(b में आता है. अच्छा छोड़ो, चलो मानो एग्रीमेंट में ये लिख दे कि आई एम सपोज टू वर्क एज अ फैकल्टी और फिर मैं एज अ फैकल्टी सर्व करता हूं और उसके लिए वो मुझे पैसे देते हैं. तो कहना ही से इट इज 100% करेक्ट कि अभी मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, फैकल्टी तो फैकल्टी होता है, तो इट इज एज पर एम्प्लॉयमेंट. और मान लो कि कल सुबह मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैन यू ऑल्सो डू सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स इन दैट. Now that managerial aspect is not part of any employment agreement. My employment agreement only says that you have to serve as a faculty. अब मान लो कि मैं एज एन मैनेजरियल पर्सन भी कुछ काम कर रहा हूं और उसके लिए वो मुझे पैसे देते हैं तो एज पर ओरिजिनल 7(1)(a इट इज लायबल फॉर जीएसटी. और अगर उसके लिए पैसे नहीं देते हैं तो शेड्यूल 1 के हिसाब से जीएसटी लगेगा बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशन में मैं आ जाता हूं. So the point is, this becomes a very complex provision. In fact, मैं बताऊं कुछ ऐसे AAR के वर्डिक्ट भी आए हुए हैं. एक मुझे याद है, एक कोई कंपनी है जिसके केस में ऐसा हुआ था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को फूड ऑफर किया जा रहा है. अब 2 पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटी नंबर 1, क्या वो फूड के लिए पैसे चार्ज किए जा रहे हैं या नहीं चार्ज किए जा रहे हैं. अगर मान लो कि वो फूड के लिए पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कंपनी, देखो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे वो तो नॉर्मल है, यहां तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है. तो क्या कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये लिखा था
कि आप हमारे लिए काम करोगे तो उसके लिए हम आपको कंसिडरेशन देंगे, वेयर कंसिडरेशन वुड आल्सो इंक्लूड दैट वी विल प्रोवाइड फूड फैसिलिटी टू यू. If you say that employment agreement में ये लिखा है कि the employer will provide food arrangement to the employee, then that food provided by an employer to employee is nothing but part of the total consideration that an organization is supposed to give to an employee for the services that he provides. So that means it is purely in relation to employment. पर अगर मान लो कि ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिखा है और फिर कंपनी फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो आई थिंक कंपनी उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज करेगा. अगर चार्ज करता है तो ऑब्वियसली वो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन है, क्योंकि सप्लाई इज गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एंड फॉर विच एम्प्लॉई इज गिविंग कंसिडरेशन, तो वो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा. कोई बोले पर सर वो एम्प्लॉयर का बिजनेस थोड़ी है. 100% फ्रेंड्स, एम्प्लॉई को अगर अपने वहां पे काम करने के लिए कोई सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है तो दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर, बट इट बिकम्स इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर. तो उसके केस में डेफिनेटली बिजनेस का टर्म प्रूव हो जाएगा और उसके लिए जीएसटी भरना ही पड़ेगा. अब अगर कंसिडरेशन चार्ज करे तो ओरिजिनल सप्लाई के हिसाब से भरना पड़ेगा, और कंसिडरेशन चार्ज ना करे ना, और अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा है फूड प्रोवाइड करेंगे, तो देन शेड्यूल 1 बीच में आएगा. रीजन इज वेरी क्लियर दैट इट्स अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई, and that is not as per employment contract. And since employer are covered under the relationship of under the definition of related parties, schedule 1 will play its role, and उस केस में जीएसटी लगेगा ही. ऐसा ही कुछ कंपनीज है जो एम्प्लॉयज को पिकअप एंड ड्रॉपिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं. फैक्ट्री कोई रिमोट एरिया में लोकेटेड हो ना, तो मेन एरिया से वहां ले जाने के लिए बस की सर्विस दिया जाता है, या कार में पिकअप एंड ड्रॉपिंग की फैसिलिटी दी जाती है ना. अगर उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये डाल दो ना तो बराबर है, इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट. अगर ना डालो और फिर पैसे चार्ज करो तो उस केस में वो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, और चार्ज ना करो तो ओरिजिनल सप्लाई में भी नहीं आएगा, बट शेड्यूल 1 के हिसाब से वो जीएसटी में आ जाएगा. बिकॉज दिस इज वेरी क्लियरली फर्स्ट नंबर पॉइंट, एन एम्प्लॉई प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन एम्प्लॉयर, वो उससे बाहर निकल जाता है. तो शेड्यूल 1 का जो हमारा पॉइंट है उसके हिसाब से वो जीएसटी के लिए लायबल होगा. सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल 1, बट इवन इफ देयर इज शेड्यूल 1 देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस बिटवीन एम्प्लॉई एम्प्लॉयर व्हिच आर ऑलवेज लायबल फॉर जीएसटी. द पॉइंट इज ओनली दैट इट इज नॉट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, रादर इट इज ओवर एंड अबव द एम्प्लॉयमेंट. तो उस केस में जीएसटी लगने के पूरे चांसेस है. सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस शेड्यूल 3 पॉइंट. Now let us come back to our original point, that is schedule 1, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पर्टिकुलर इश्यू को. Now as we have entirely discussed this point, it says supply of goods or services between related person. Related person में कौन आता है हमने डिस्कस कर लिया. Between distinct person में कौन आता है हमने डिस्कस कर लिया. When made in course or furtherance of business, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. Now इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक एक्सप्लेनेशन एडेड है लॉ में, and that is with regard to gift. Let us try and understand this, which says gifts not exceeding rupees 50,000 in a financial year by an employer to an employee is not liable for GST, will not be treated as supply. Very clearly, gift by an employer to an employee of an amount not exceeding rupees 50,000. So 50,000 तक की अमाउंट of an amount not exceeding rupees 50,000 in a financial year by an employer to an employee will not be treated as supply. This is what we are talking about as per schedule 1. So does that mean कि 50,000 से ऊपर होगा तो it is liable for GST? Answer is very clearly yes. Reason is वैसे भी वो related party की definition में आता है. अब देखो होता क्या है पता है, अगर मान लो कि किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय की एग्रीमेंट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हम आपको एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इतनी अमाउंट का बोनस देंगे, तो देन सच बोनस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गिफ्ट बिकॉज दैट इज एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. सो इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, वो जीएसटी से बाहर निकल जाता है. फिर कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में बोनस कुछ नहीं लिखा है, बट कंपनी एम्प्लॉय के काम से बहुत खुश हो गया और खुश हो गए, उसे मान लो कि बोनस देता है, तो इट इज नथिंग बट अ गिफ्ट. बोनस कोई भी फॉर्म में दे सकता है, कैश में दे, काइंड में दे. आई थिंक आई कैन गिव एन एग्जांपल. हमारे गुजरात में सूरत में एक डायमंड मर्चेंट है, आई थिंक मिस्टर सवजी धोड़किया.
ये अपने एम्प्लॉय को गाड़ियाँ देते हैं, ये अपने एम्प्लॉय को घर देते हैं, ये अपने एम्प्लॉय को फॉरेन ट्रिप देते हैं. सो ही गिव्स लॉट ऑफ गिफ्ट टू द एम्प्लॉयज एंड नथिंग इज मेंशन इन देयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. तो जब ये अपने एम्प्लॉय को ये सब देते हैं तो पॉइंट इज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट. सो स्केड्यूल 3 तो बीच में आ नहीं सकता. अब स्केड्यूल 3 बीच में नहीं आएगा. सो द ओनली रेलेवेंट पॉइंट इज क्या स्केड्यूल 1 के हिसाब से हम उसे सप्लाई मानेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कुछ टाइप के गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के ऊपर है. सो स्केड्यूल 1 इज वेरी क्लियर कि हम तो उसे जीएसटी मानेंगे, बट ये प्रोविजन कह रहा है कि हम उससे जीएसटी के लिए सप्लाई तभी मानेंगे जब वो 50,000 से ऊपर है, क्योंकि 50,000 तक का पूरा अमाउंट इस क्लॉज के हिसाब से फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा. सो अगर मान लो कि सब्जी धोड़किया साहब आई थिंक इस साल उन्होंने अपने एम्प्लॉय को आई थिंक कुछ 3-4 एम्प्लॉय थे जिनको 1-1 करोड़ रुपए का गाड़ी दिया हुआ है. तो अगर अपने एम्प्लॉय को 1-1 करोड़ रुपए का मर्सिडीज का कोई मॉडल दिया हुआ है, सो मैं कह सकता हूं ना कि गिफ्ट्स और 1 करोड़ रुपीज, सो दैट मीन्स इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000 वाला तो क्लॉज ही निकल गया. पर मान लो कि 40,000 50,000 के गिफ्ट अगर एम्प्लॉय को दिए होते तो दो इट फॉल्स अंडर दिस बेसिक सप्लाई टर्मिनोलॉजी, बट यहां से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि एक क्लियर एक्सप्लेनेशन लॉ में है कि गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई will not be treated as supply. So I think everybody would understand. देखो याद रखना, गिफ्ट के लिए कभी तुम स्केड्यूल 3 क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के ऊपर होगा. अगर मान लो कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि हम आपको गिफ्ट देंगे या बोनस देंगे या कमीशन देंगे या फलाना देंगे ढिगना देंगे, ऐसा कुछ भी लिखा है तो उस केस में स्केड्यूल 3 विल प्रिवेल. बट अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, नथिंग इज मेंशन इन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, देन इन दैट केस स्केड्यूल 3 कैन नॉट कम इन पिक्चर. सो देन स्केड्यूल 1 इज ऑलवेज देयर व्हिच सेज देयर इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन गिफ्ट गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एंड वी विल ऑलवेज चार्ज जीएसटी ऑन दैट. बट अगर वो गिफ्ट नॉमिनल अमाउंट तक का है, जो जनरल प्रैक्टिस होता है, दिवाली में गिफ्ट देते हैं यार एम्प्लॉइज को जो उनके एग्रीमेंट में नहीं होता है, तो क्या, तो क्या इफ दैट इज अप टू 50,000 तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. दैट इज अ क्लियर क्लॉज. बट इफ इट इज अबव दैट लिमिट तो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, तो स्केड्यूल 1 के इस पॉइंट के हिसाब से सीधा जीएसटी चार्ज हो जाएगा. सो आई थिंक एवरीबडी वुड अग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट स्केड्यूल 1 में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वाला पॉइंट बहुत बड़ा झमेला बनने वाला है. इन अ डेज टू कम यू मे फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जजमेंट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्डिक्ट्स अवेलेबल विथ रिगार्ड टू द सेम. आइए बात करते हैं सब्सिक्वेंट पॉइंट्स की विथ रिगार्ड टू स्केड्यूल 1 फ्रेंड्स. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.